Hello friends, welcome to ICU with Dr. Bhautik. Today we learn ABG interpretation in very simple step-by-step way. First, remember the normal value pH is 7.35 to 7.45, PaCO2 35 to 65, bicarb HCO3 minus 22 to 26, PaO2 80 to 100, SaO2 95 to 100. And one thing remember, pH indicate the acid base status and PaCO2 and HCO3 minus determine the primary disorder. So first step, look for the pH. If pH less than 7.35, it means acidosis. If pH more than 7.45, it means alkalosis. Step 2, identify whether the problem is respiratory or metabolic. PaCO2 tell us about the respiratory problem and bicarbonate HCO3 minus tell about the metabolic problem. If is low, pH is low, ठीक है, less than 7.35, PaCO2 is high, it's called respiratory acidosis. Example 7.28 pH or PaCO2 60. ठीक है, or if pH is high, ठीक है, or PaCO2 is low, it means respiratory alkalosis. Example 7.48 pH or PaCO2 28. Okay. So it's called respiratory problem. Now come to the metabolic problem. pH is low and bicarbonate is also low, less than 22. It means metabolic acidosis. Example 7.25 or bicarbonate 10. Then if the pH is high, bicarbonate high, it's called metabolic alkalosis. pH 7.52 or bicarbonate 32. Then come to the next step. Check for the compensation. Okay. Body always try to compensate. Okay. In respiratory problem like respiratory acidosis, kidney retain the bicarb. In respiratory alkalosis, kidney remove the bicarb. Okay. Or metabolic acidosis, lung blow up CO2, and metabolic alkalosis, lung retain the CO2. Lung blow up by hyperventilation, lung retained by hypoventilation. Okay. In now come to the compensation formula. In respiratory acidosis, okay, bicarbonate increase in 1 with every 10 mmHg of increase above 40 in acute condition. In chronic condition, HCO3 minus increase 3.5 to 4 in every 10 mmHg. Example, PaCO2 we take 60, so there is increase of 20 mmHg, so 10 पे 1 यानी कि 20 पे 2. So in acute condition 22 plus 2, 24 plus or minus 2. So it's a calculated value. So we check for the expected or actual value with if compensation is proper or not. We can see that. Okay. Or in respiratory alkalosis, bicarbonate decrease 2 for every 10 mmHg of fall of PaCO2. Or in chronic condition, bicarbonate decrease 4 to 5 for every 10 mmHg of fall of PaCO2. For example, we take the PaCO2 20. So in acute condition, 10 पे 2 तो 20 पे 4, 22 minus 4 यानी कि 18 plus or minus 2. In chronic condition 22 minus 8, 20 पे 4 तो 10 पे 4 तो 20 पे 8, 22 minus 8. So these are the values. In metabolic acidosis, we calculate this by the Winter's formula. Change in PaCO2. Okay, 1 plus 5
into bicarb plus 8. For example, we take the bicarbonate 12. Expected PaCO2 is 1.5 into 12 plus 8. 26 plus or minus 2, 24 to 28. ठीक है. So if the PaCO2 is within the range, the compensation is appropriate. Or if the PaCO2 is out of proportion, suspect the mixed disorder. ठीक है. और now come to the fourth step. If the pH is normal, ठीक है, तो don't ignore the ABG. Sometimes the pH is normal because the patient is fully compensated. So check for the PaCO2 and bicarb. Okay, if both are normal, ABG is normal. If both are abnormal, then this is a compensated disorder. ठीक है. उसके बाद चेक फॉर द PaO2, हाइपोक्सेमिया है या नहीं है. PaO2 80 to 100 is normal value. SaO2 95 to 100 is normal value. ठीक है. उसके बाद एग्जांपल देखते हैं. एक पेशेंट है, 56 ईयर ओल्ड मेल, COPD एक्सासर्बेशन. उसको डिस्मिया और ड्राउजीनेस के साथ प्रेजेंट हुआ है. उसका ABG रिपोर्ट दिया हुआ है, 7.28 का pH है. अब 7.28 है मतलब एसिडेमिया, एसिडोसिस है. एसिडोसिस दो वजह से हो सकता है, या तो CO2 बढ़ने की वजह से, बाइकार्ब कम हो जाएगा. जैसे यहाँ पे CO2 बढ़ा हुआ है, तो प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा हुआ है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 बढ़ा है. ठीक है. उसके बाद कंपेंसेशन चेक करेंगे. कंपेंसेशन एक्यूट कंडीशन है, बाइकार्बोनेट 10 चेंज होता है, उसके साथ 1 का बढ़ता है बाइकार्बोनेट. यहाँ पे 18 प्लस हुआ है, 40 प्लस 18 यानी कि 58 आ गया. ठीक है. तो 1.8 का चेंज होगा, यानी कि 27 आया वैल्यू इसकी, तो 27 ही है यहाँ पे. तो एडिक्वेट कंपेंसेशन हुआ है. उसके बाद देखते हैं उसका PaO2 64 है. 80 to 100 नॉर्मल वैल्यू रहती है, 64 मतलब हाइपोक्सेमिया है. सो दिस इज कॉल्ड एक्यूट ऑन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ हाइपोक्सेमिया. इसका इंटरप्रिटेशन आता है ABG का. उसके बाद एक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का एग्जांपल देखते हैं. 45 ईयर ओल्ड मेल फीमेल पेशेंट है, इमरजेंसी में आई है. उसको सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस विथ एंजाइटी के साथ. उसका ABG रिपोर्ट दिया हुआ है हमें, pH 7.48 है, मतलब अल्कलोसिस है. उसको अल्कलोसिस कैसे हो सकता है? CO2 या तो डाउन होने की वजह से, या तो बाइकार्ब कम होने की वजह से. यहाँ पे CO2 कम हुआ है, 30 है. ठीक है. बाइकार्ब नॉर्मल वैल्यू है, तो मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, उसको भी कंपेंसेशन नहीं हुआ है उसका. ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जांपल देखें मेटाबॉलिक का. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एग्जांपल, एक 25 ईयर ओल्ड मेल है, डायबिटिक और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ प्रेजेंट हुआ है. उसका ABG रिपोर्ट दिया हुआ है, 7.28 pH है. एसिडोसिस कैसे हो सकता है? या तो CO2 बढ़ता है, CO2 बढ़ा है नहीं. ठीक है. बाइकार्बोनेट डाउन 12 है, प्राइमरी डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस. उसका कंपेंसेशन देखते हैं विंटर फॉर्मूला से. विंटर फॉर्मूला 1.5 into 12 plus 8, तो आया उसका एक्सेप्टेबल रेंज है 24 to 28. कंपेयर विथ ABG, 26 है ABG में. एडिक्वेट कंपेंसेशन हुआ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ एडिक्वेट कंपेंसेशन किया है उसको. रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन हुआ है हाइपर वेंटिलेशन के साथ. ठीक है. बॉडी कंपेंसेट कर रही है. ठीक है. उसके बाद आता है एक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का एग्जांपल देखते हैं. तो 60 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट हुआ है वोमिटिंग के साथ, 7.52 pH है. कैसे हो सकता है? या तो CO2 कम हुआ है तो अल्कलोसिस हो सकता है, या तो बाइकार्ब कम हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ है बताओ? बाइकार्ब कम हुआ है, 34 है. ठीक है. बाइकार्ब बड़ा हुआ है, उसकी वजह से अल्कलोसिस हुआ है. बाइकार्ब बढ़ने की वजह से अल्कलोसिस होता है, या तो फिर CO2 कम होने की वजह से हो सकता है. तो यहाँ पे बाइकार्ब कम हुआ है. उसके बाद उसका PaCO2 की वैल्यू एक्सपेक्ट है उसकी कैलकुलेट करते हैं. तो 0.7 into 34 - 24 + 40, तो उसकी एक्सेप्टेबल रेंज आती है 42 to 52. एक्चुअल रेंज यहाँ पे दी हुई है 50. तो एडिक्वेट उसका कंपेंसेशन भी हो रहा है. तो ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक एग्जांपल हो गया. उसके बाद आते हैं हम एग्जांपल पे.
कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल रहते हैं उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये सारे। ठीक है, तो उसके एक एसिड बेस डिसऑर्डर रहते हैं, उसमें एसिडोसिस कॉमनली किस पेशेंट में कैसे देखने को मिलता है कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पेशेंट को। या तो फिर पहले उसका बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो तब बोल सकते हैं उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या तो फिर उसका एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके एग्जांपल रहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, शोक, हाइपोपरफ्यूजन, सेप्सिस, सीकेडी, रीनल फेलियर, डायरिया, उसमें बाइकार्बोनेट लॉस होता है, उसमें देखने को मिल सकता है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वो कब देखने को, CO2 इंक्रीज हुआ तब। तो हाइपोवेंटिलेशन किस में हो सकता है, COPD, एक्सरसेबेशन, अस्थमा, न्यूमोनिया, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम एंड ड्रग, ओपियोड या तो फिर सीडेटिव के देखने को मिल सकता है। अब आता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, किस में देखने को मिलता है, पीएच इंक्रीज होता है उसमें, या तो बार कार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है हाइड्रोजन उस वजह से, तो वोमिटिंग और नेजोगेस्ट्रिक सक्शन, या तो लूप या थाइजाइड डाययूरेटिक, एक्सेस अल्डोस्टेरोन कौन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है, पोस्ट हाइपरकेप्निक स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, डिक्रीज CO2 ड्यू टू द हाइपरवेंटिलेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, फीवर, हाई एल्टीट्यूड और प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है CO2 डाउन की वजह से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ABG इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए अगला वीडियो आप कौन